To all the participants. We have with us Dr. Sejal for today's session. And today's session of Dil Ke Daud is about sitting is killing, how a sedentary lifestyle is leading to heart diseases. So Dil Ke Daud is a series where we talk about issues related to heart disease, where we interact with our specialists on various topics of heart disease. So the motive of this series is to spread the message as much as possible. And for today's session, I will be your host. I am Sajidur Rahman from Kolkata. I am a heart attack survivor. I have undergone bypass surgery in the year 2018. Since then, I have been living a very controlled life. There is checkup on time, diets, medicine, taking care of my physical health, also with a very positive mindset. And I have been associated with Heart Health India Foundation for near about 2 years, and I have attended many camps and awareness sessions as a speaker on behalf of Heart Health India Foundation. And lately, I have been hosting these Dil Ke Daud webinars. So, as I have already mentioned, that today's session is about sitting is killing, how a sedentary lifestyle is leading to heart disease. And today's session is being organized by Heart Health India Foundation in collaboration with Society for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. This is an organization working to strengthen patients' care and recovery system across the country. Together with Heart Health India Foundation, they are helping create safer, stronger recovery journey for the patients and their families. And to take you through today's session, we have with us Dr. Sejal Veda Godli. She is a cardiorespiratory physiotherapist trained at the KEMS Hospital, Mumbai. Dr. Sejal worked at some of the renowned hospitals like Asian Heart Foundation Institute, British Hospital, and she is also the founder of Care Physio and Rehab. It's a first of its kind clinic in Cheyenne, dedicated to cardiopulmonary rehabilitation. She is being recognized for her pioneering tele-rehabilitation work during the COVID-19 lockdown. She continues to contribute to research, lectures, and also national level training programs. So we are very privileged to have you, Dr. Sejal. And now it's over to you to carry forward today's discussion. Thank you so much for your kind introduction, Mr. Rahman. I'm a proud member of Society of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, and I urge all the patients who are suffering from heart disease or have a family member having a heart disease, do register as a member. You'll have a lot of support and a lot of guidance through your journey, and it's free of cost for patients. So please do join. Let me start my talk here. My screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Visible. Yeah. Can you take care of the admission part? Yes, ma'am. Thank you. Yes, so everybody can see the screen, right? Can everybody see the screen now? Yes, ma'am. Okay, sure. Let's start. So my topic today is how sedentary lifestyle leads to heart disease. A very short and sweet sentence would be sitting kills, but moving heals. So what exactly is sedentary behavior? I know we all are familiar with the word, but do we know the exact meaning of being sedentary? So the word sedentary is derived from Latin word that is sedentarius, defined as sitting, remaining in one place. Sedentary behavior
as a scientifically defined as waking behavior such as sitting or leaning with an energy expenditure of 1.5 metabolic equivalent task or less while sitting, reclining, or lying. Okay, don't get worried about such hi-fi terms. I will explain you everything. So, what is 1 MET? 1 MET is defined as the ratio of work metabolic rate to the standard resting metabolic rate. That is MET. So, what is standard resting metabolic rate? Whatever energy you spend or consume while sitting, when you're not doing anything else, in just lying down or sitting, you are spending around 1 metabolic equivalent of energy. That is how much calories you are burning, how much calorie your body is burning to just be in that position, not do anything. That is the basic 1 MET. And 1.5 is the resting sedentary behavior category. That is 1.5 MET or less if you're spending, for example, watching TV while sitting or reclining, talking on the phone while sitting, reclining, or lying, listening to music, eating, bathing, but in a comfortable sitting position, reading. In office or school, using computer while sitting or writing. Again, you're not spending too much of an energy. Talking on the phone, sitting in the class, typing, reading, while transportation, driving or just sitting on the passenger seat, or in leisure activities like playing an instrument, again, that you're doing in sitting, doing some art and craft, knitting, meditating, playing cards, viewing a sport, not playing, viewing a sport, attending a religious service, again, sitting. So just have a look at these activities and just try mental calculation. How much time are we spending in sitting? Although we feel we are active, we are doing something or the other. We are using our brain. We are using our fine motor. But are we actually spending energy? Are we actually burning calories? No. So almost 8 to 10 hours a day we spend in sedentary behavior on an average very easily. Just one important category has been missed out from this is scrolling on the phone, right? How mindlessly we just sit and scroll for hours together and we don't realize, be it WhatsApp or Facebook or Instagram, right? So 1 to 1.5 METs if you're spending energy. So sis, when you're listening to music and sitting, you're hardly spending energy. You might just sway a little, right? But you're not really spending energy. So that comes around 1.5 METs. Little more exertion, like somebody rung the bell and you stood up and opened the door. So that would come in light intensity, 1.6 to 2.9 METs. If you're doing little more harder, like walking, brisk walking, then it would be under 3.5 to 9 METs, 3 to 5.9 METs intensity of exercise. And if you're doing vigorous intensity like jogging, running, stair climbing, that would be more than 6 METs. Okay, a lot of you must have been through stress test, I assume, at least once in the lifetime. So first 3 minutes, next 3 minutes, and the last 3 minutes, there is a categorization. So if you are able to perform for first 3 minutes, you are at least in the light intensity range. If you're able to do the next 3 to 6 minutes, you are at least in the moderate intensity range. And if you are able to cross 6 minutes, that means your heart is perfectly strong and you're able to do more than 6 minutes. I think that will be very easy to correlate. So what are the barriers and facilitators for physical activity? Barriers, very easy to list down. See, technical advancements, so many things, Swiggy, Zomato, we can just click the button and things will just get delivered at your doorstep. So there is no motive to go down, step down. Every banking app will provide every solution at your home. So we are losing physical activity to technology. Traffic congestion, again, you don't feel like going out. You can do work from home, like we are doing the webinar from home. Air pollution will make you stop going out and exercise in the park. Shortage of parks and pedestrian walkways, lack of sports and leisure activities. Now, metro cities have all these facilities, but some small cities or villages may not have. Perceived limitation in self-efficacy, or the fear that maybe I will be able to do it or I may not be able to do it, considering the other comorbidities like blood pressure, diabetes, low BP, whatever it is.
lack of time and motivation. I just don't want to do it, you know. क्या ही हो जाएगा, कर लेंगे तो या नहीं करते. We are fine. At the moment you are fine, but what is happening in the body, हमारे शरीर में अंदर क्या हो रहा है, we don't know, right? हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है. Misconception of the volume of exercise necessary for cardiovascular health benefits. Very common, right? अगर बहुत जोश में आके चल 31 दिसंबर सबका ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है ना, अभी तो हमें जिम ज्वाइन करना ही है. मतलब पूरा साल कुछ नहीं किया, बट 1 जनवरी जिम्स आर फुल. फिर जाके सब ट्रेडमिल पे रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, आधा घंटा वेट्स उठाएंगे 5-10 किलो, और फिर नेक्स्ट पूरा हफ्ता 10 दिन घर पे पलंग पकड़ के बैठ जाएंगे, राइट? So we don't know how much to start with, what is the safe range of exercise that we can do, and how to progress. So all these are the barriers. So what can be the facilitator to start physical activity? One is less screen time. That will solve majority of the problems, you know, that you'll automatically find things to do. You'll find time to do other things. Walk or exercise indoors when it is raining or when it is too much polluted outside. Community centers and turfs you can book for a group of few people. आप like minded people सब एक group बना के सब साथ में exercise कर सकते हैं. Sneaking out time during lunch breaks in the office, traveling. ट्रैवलिंग में आप थोड़ा कार दूर पार्क करके थोड़ा चल के जा सकते हैं, या हाउस होल्ड वर्क के ड्यूरिंग आप काम थोड़ा टाइम ढूंढ के एटलीस्ट स्क्वाट्स कर लीजिए 10. पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहेंगे तो आपको रेगुलर अलर्ट आते रहेगा कि बॉस अभी आपने थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए. सिर्फ दवाई के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं. फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा वर्क शेयर हो जाएगा, घर के काम शेयर हो जाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा. आपको साथ में कंपनी देने के लिए कोई आ जाएगा तो आपका एक हैबिट बन जाएगा, चलने में इतना आलस नहीं आएगा. You'll not feel lazy. Insurance policies these days are also stepping up, you know. I had an app which said that if you are able to complete 10,000 steps तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा. Very welcome step, right? And hobby or cause. When you are doing it for a hobby, when you're doing it for a cause, then automatically वो अंदर से motivation आएगा आपको activity करने के लिए. So what is the risk of being sedentary? What sitting does to your body? सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ बैठे रह के सब काम करना. जो भी हम कर रहे हैं हमको लग रहा है हम बहुत कर रहे हैं पर बैठ के कर रहे हैं. सो दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज लीडिंग यू टू डायबिटीज, वेरी हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज. हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल दैट इज लो लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. देन ओबेसिटी मोटापा, बहुत आपका वजन बढ़ना. अर्ली मोर्टालिटी, ये सब की वजह से आपका लाइफ कम हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, बिकॉज एट द मोमेंट आपको शायद कुछ फील नहीं हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये सब चीज़ें आपको इवेंचुअली कोरोनरी हार्ट डिसीज की तरफ ढकेल रही है. अदर देन दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज जैसे कि घुटने का दर्द बढ़ना, स्पॉन्डिलाइटिस, रॉन्ग पॉस्चर्स की वजह से एक्स एंड पेन्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है तो बहुत ही कॉमनली देखी जाती है. दिस इज वेरी शॉकिंग. सी, कंपेयर टू दोज हु आर वेरी फिजिकली एक्टिव, the risk of coronary heart disease in sedentary individual is 150 to 240% higher. Can you beat that? मतलब ये तो होना ही है. अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो हार्ट का प्रॉब्लम हमको आना ही आना है, ये मान के ही चलना है. तो दैट शुड बी आवर वेकिंग कॉल. और अगर आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आज और अभी से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. सो हाउ बीइंग सेडेंटरी इज एक्चुअली लीडिंग यू टू हार्ट डिसीज. क्या होता है अपने शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे या ब्लड लेवल पे या सेल्यूलर लेवल पे एक्चुअली होता क्या है? तो होता यह है कि रिड्यूस्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी. उसका क्या मतलब है? अपना बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, हमें सिर्फ लगता है कि शुगर ज़्यादा खाने से हमको डायबिटीज़ होता है, पर ऐसा नहीं है. एक्चुअली इंसुलिन सेंसिटिविटी इज़ द रीज़न हमको डायबिटीज़ मेजरली होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस. तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप मूवमेंट नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका मसल्स, आपके टिश्यूज़ उससे अभी ज़्यादा देर तक सेंसिटिव नहीं रहते.
मतलब वो इंसुलिन को अट्रैक्ट नहीं करते, इंसुलिन फिर शुगर को बाइंड नहीं करेगा और यूटिलाइज नहीं करेगा। इंसुलिन है बॉडी में, शुगर भी है, पर दोनों का तालमेल नहीं होता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाते जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनने की वजह से बॉडी और ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। एंड आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट रीज़न है डायबिटीज़ होने का। तो अगर आप आपका वेट कंट्रोल में रखते हैं विथ एक्सरसाइज एंड डाइट एंड अदर स्टाफ, तो आपको ये इश्यू जल्दी नहीं होगा। रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है तो हार्ट को लगता है इतना ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत ही नहीं है, तो हार्ट पंपिंग ही कम कर देता है इवेंचुअली, ज़्यादा ब्लड बाहर आता ही नहीं है। प्लस ब्लड वेसल्स कम हो जाते हैं अपने टिश्यूज़ में से, अपने ऑर्गन में से, अपने मसल्स में से। तो अगर एक स्क्वायर मीटर में हम देखें तो डेंसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स कम हो जाते हैं। अगर वही चीज़ हम एक्सरसाइज करते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो ब्लड वेसल्स का डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ वेसल्स बढ़ जाते हैं, ताकि वो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। अनदर थिंग इज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। जैसे ब्लड वेसल्स कम होता है वैसे उसका डायमीटर भी कम हो जाता है, तो उसको ज़्यादा मुश्किल होती है ब्लड पास करने में। तो ये सब की वजह से हार्ट को भी ब्लड पहुंचना कम हो जाता है। रिड्यूस्ड फैट ब्रेकिंग एंजाइम, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली ऑब्जर्व। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सब रिसर्च द्वारा प्रूवन है कि रिड्यूस्ड फैट को जो मेटाबॉलाइज करता है, जो ब्रेक करता है, वो एंजाइम बॉडी में कम हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो क्या होता है, फैट बॉडी में स्टोर हो जाता है, ज़्यादा स्टोर होने की वजह से हमारा वजन बढ़ते जाता है। इवेंचुअली वो भी हार्ट डिसीज को इनवाइट करता है। एंड इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड पोल्यूशन एंड अदर स्टफ आर एडिंग टू इट। और ओबेसिटी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। व्हाट इज लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? कोरोना के टाइम पे सबने सीआरपी टेस्ट कराया होगा, आई एम अज्यूमिंग, सी रिएक्टिव प्रोटीन। दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, कि शरीर में थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन चल ही रहा है, एंड दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ सडन हार्ट अटैक्स एंड कार्डियक अरेस्ट दीज डेज। This is a very interesting graph. Let's take some time to understand this. What is it showing? अब ये क्या दिखा रहा है? ये 4 लाइंस हमें दिख रही है। ग्रीन में क्या है कि हम 8 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे बैठ रहे हैं, चाहे वो एक साथ कंटिन्यूस हो या स्पेस आउट करके हो। दिन 24 घंटे के 8 घंटे से ज़्यादा हम बैठ रहे हैं एक जगह पे। वी आर एंगेजिंग इन sedentary बिहेवियर एंड द ब्लू लाइन इज शोइंग लेस देन 4 आवर्स। हम 4 घंटे से भी कम बैठ रहे हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज को अगर ना भी देखें तो जो कम बैठ रहा है उसका मोर्टालिटी मतलब हार्ट डिसीज के वजह से अगर पर्सन इज डाइंग तो उसका रिस्क कितना कम है। वही रिस्क अगर आप ज़्यादा टाइम बैठ रहे हो तो रिस्क कितना ज़्यादा है, राइट? उसमें अगर आप दोनों लोग सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखो दोनों लेस देन 2.5 मेट आवर्स पर वीक कर रहे हैं। लेस देन 2.5 मेट आवर्स पर वीक इज एज गुड एज नथिंग। ओके, 35.5 मेट आवर्स इज अराउंड 1 घंटे का एक्सरसाइज पर डे फॉर 6 to 7 days। तो अब देखिए 2.5 मतलब कुछ भी नहीं। तो भी अगर आप ज़्यादा बैठ रहे हो तो आपका रिस्क कितना ज़्यादा है। हार्ट डिसीज की वजह से अगर आपका डेथ हो उसका रिस्क हम देख रहे हैं। पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज में एंगेज हो रहे हैं, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं, तो वही रिस्क देखो कितना ड्रास्टिकली कम हो रहा है। देख रहे हो आप, अभी दोनों में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। लेट्स टेक टाइम टू अप्रिशिएट दिस। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं पर सिर्फ ज़्यादा बैठ रहे हैं, ये कम बैठ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में ऑन द एक्सट्रीम राइट, अगर आप रोज का 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बावजूद आप 8 घंटा बैठ रहे हो या 4 घंटा बैठ रहे हो, तो रिस्क कितना कम हो जाता है, राइट? तो एनीवेयर इन बिटवीन ऑल्सो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे आप 35.5 तरफ जा रहे हैं, तो आपका रिस्क दिन ब दिन, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ कम ही हो रहा है हार्ट डिसीज होने का
और हार्ट डिसीज की वजह से डेथ होने का। तो अभी बहुत बैठ लिया, बहुत बातें हो गई, लेट्स डू सम एक्टिविटी। I will request everyone to just stand up wherever you are and let's exercise for 30 seconds, just 30 seconds. Yeah, let's do it. जगह पे ही हम थोड़ा स्पॉट मार्चिंग कर लेते हैं. Yes. थर्टी सेकेंड के लिए हम जगह पे ही स्पॉट मार्चिंग करते हैं, जगह पे ही. ऐसे हर 10-15 मिनट में हमें सीट से एक बार उठ जाना है. That will break the sedentary behavior habit. Okay, let's move on. So what is the recommendation? ACSM is American Society of Sports Medicine, American College of Sports Medicine and Center of Disease Control. These are the two main important bodies जिनका recommendation है after a lot of research. बहुत ज़्यादा research के बाद उन्होंने ये conclusion निकाला है कि 75 to 150 minutes of moderate intensity exercise, aerobic exercise every week. अगर आप थोड़ा विगरस में जा रहे हो तो 75 मिनट्स और मॉडरेट इंटेंसिटी कर रहे हो तो 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज एवरी वीक करना है. 150 मिनट्स अ वीक मतलब रोजाना हाफ एन आवर जितना होना चाहिए. एंड 2 टाइम्स ऑफ वीक आपने क्या करना है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है. मसल स्ट्रेंथनिंग मतलब आप थेराबैंड से करो या डंबल से करो, जैसे हम आगे देखेंगे. तो इतना एक्सरसाइज अगर आपने कर लिया तो आप हेल्दी रहोगे. आपका हार्ट डिसीज होने का या बहुत सारे दूसरे डिसीज होने का रिस्क बहुत बहुत हद तक कम हो सकता है. सो एक्सरसाइज इंटेंसिटी हमें कैसे पता चले? So a very scientific scale that we use in the clinics also is called modified box scale. बहुत इजी है. 0 to 10 पे आपको वो एक्टिविटी रेट करनी है कि अगर आप वॉक करके आए हैं या हमेशा जो आप वॉक करते हो तो उसमें आपको कितना एक्सर्शन लगता है, कितना थकान लगता है. अगर आजकल जितना भी आप वॉक कर रहे हो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ स्लिपिंग, बारिश है तो पैर स्लिप ना हो जाए, इसकी वजह से भी शायद आप स्लो चलते होंगे. तो अगर आपका एक्सर्शन 0.5, 1 या 2 या 3 है तो आपका इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज इज लाइट. ओके, अगर आपको बहुत लाइट लग रहा है, जो आप चल रहे हो लाइट लग रहा है या वेरी वेरी लाइट लग रहा है या बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं लग रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू स्टेप अप योर एक्सरसाइज स्पीड या इंटेंसिटी. अगर आपको लिटिल इंटेंस लग रहा है या इंटेंस लग रहा है, दैट मीन्स यू आर इनटू मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज. मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में आपको थोड़ा हार्ट बीट और फास्ट होगा, थोड़ा ब्रीदिंग फास्ट होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा. ओके, और आपको थोड़ा सांस फूलने लगेगा. दैट मीन्स यू आर इनटू मॉडरेट इंटेंसिटी. एंड विगरस मीन्स वेरी इंटेंस. अगर आपको फील हो रहा है जैसे आप लिटरली रन कर रहे हो, वेरी वेरी इंटेंस, मतलब स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो फास्ट, आप 5-6 फ्लोर या 10 फ्लोर चढ़ रहे हो, या फिर प्रॉपर ट्रेडमिल पे 8-9-10 का स्पीड पे आप रन कर रहे हो, दैट इज विगरस. पर ये एक्सरसाइज इंटेंसिटी एटलीस्ट 10 मिनट्स कंटिन्यूअस रहना चाहिए. अगर आप 1-1 मिनट का बाउट्स कर रहे हो तो उसको हम इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बोलते हैं. उसको विगरस या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम नहीं बता पाएंगे. उस एक्टिविटी को एटलीस्ट 10 मिनट सस्टेन करते हैं वो लेवल पे, तो वो इंटेंसिटी आप उसको बता सकते हो. अनदर वेरी इजी टेस्ट कि पता चले कि हम हमारा इंटेंसिटी कहाँ पे है, दैट इज टॉक टेस्ट. दिस मेथड अलाउज यू टू गॉज योर एक्सरसाइज इंटेंसिटी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू होल्ड अ कॉन्वर्जेशन. अगर आप चलते चलते आराम से फोन पे बात कर रहे हो आपके रिलेटिव के साथ या आपके फ्रेंड के साथ, तो आपका इंटेंसिटी लाइट है. अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे वॉक कर रहे हो, फास्ट वॉक कर रहे हो, ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, तो आप बात कर पाओगे. पर अगर आपको किसी ने गाने के लिए कहा तो आपको गाना पॉसिबल नहीं होगा, जो लाइट एक्सर्शन में पॉसिबल हो सकता है पर मॉडरेट इंटेंसिटी पे नहीं पॉसिबल होगा. ओके, एंड विगरस मतलब क्या, आपको बातचीत करने में भी दिक्कत होगी, आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाओगे. तो ये सिंपल एक मेथड है जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कौन से इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट. एंड द लेसर द इंटेंसिटी,
द मोर द ड्यूरेशन। आपको सेम बेनिफिट लाने के लिए अगर इंटेंसिटी कम पे कर रहे हो एक्सरसाइज, तो आपको ज्यादा समय तक वो करना पड़ेगा। द हायर द इंटेंसिटी, लेसर द टाइम रिक्वायर्ड। अगर आपका इंटेंसिटी ज्यादा पे आप कर पा रहे हो सेफली एक्सरसाइज, तो आपका कम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज में वही बेनिफिट्स आपको मिल रहा है या ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अनदर वाइडली यूज्ड मेथड इज टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट ये आपने सुना होगा, 220 माइनस योर करंट एज। सो अगर आप 50 ईयर्स के हो तो योर मैक्सिमम हार्ट रेट इज 170। अगर आप 60 ईयर्स के हो तो योर मैक्सिमम हार्ट रेट इज 160, राइट? उसका 50 to 70% will be your target heart rate for moderate intensity exercise. हम आज moderate की ही बात करेंगे. So 50% of 160 would be 80 and 70% would be 100 and something. So ये रेंज में ही आपको रहना है. 112 या 115 तक आपका हार्ट रेट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. सो दिस विल वेरी एज पर योर हेल्थ, बट दिस इज ऑल्सो, इसमें भी और प्रिसाइज फॉर्मुलेशंस है. बट एट योर लेवल आई थिंक अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो तो इस इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए आप स्टार्ट तो कर ही सकते हो सेफली. हाउ टू गेट फिजिकली एक्टिव आफ्टर अ हार्ट डिसीज. अभी ये सब तो बात हुआ हमारा नॉर्मली, अगर आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, यू जस्ट सेडेंट्री तभी के लिए. पर अगर आपको कुछ भी हार्ट का बीमारी आ गया है, जैसे हार्ट अटैक आ चुका है, अगर इंटरवेंशन कुछ किया है, जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास किया है या नहीं किया है, तो थोड़ा खुद से आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करिए. आप अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस स्टार्ट करिए, वो ज़्यादा सेफ होगा. उसके लिए एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कार्डियक रिहैबिलिटेशन. कार्डियक रिहैबिलिटेशन क्या होता है? इट्स अ मेडिकली सुपरवाइज्ड प्रोग्राम. मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होते हैं उसमें, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, काउंसलर्स, सब आपको गाइड करते हैं टू कम बैक टू योर नॉर्मल रूटीन एंड गेटिंग स्ट्रोंगर फ्रॉम देयर. Lifestyle modification and everything. It has class 1 level A recommendation. What does that mean? Let's understand. It means at the highest level of clinical recommendation, meaning that a treatment, procedure or intervention, for example, cardiac rehab जिसकी हम बात कर रहे हैं, is strongly recommended. And why is it recommended? Because it is useful, it is effective and supported by strong evidence from multiple high quality studies जो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुई होती है, जिसे हमें पक्का पता है कि इससे आपको फायदा होगा ही होगा. तो ये आपने करना ही है. अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन सामने से नहीं बताते तो आपने जाके उनको पूछना है. नोबडी विल से नो अनलेस देयर आर मेजर रेड फ्लैग्स. जैसे आपको अभी भी अनस्टेबल एंजाइना है या सीरियस कुछ तो इशू है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, विच इज वेरी वेरी रेयर. 100 में से एक आधे लोग को वो मना कर सकते हैं, बाकी 99% पीपल कैन एनरोल फॉर अ कार्डियक रिहैबिलिटेशन. सो यू मस्ट आस्क फॉर इट सामने से. एंड आफ्टर एन इंटरवेंशन, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, इट इज कवर्ड इन योर मेडिक्लेम. सो आपने 100% ये प्रोग्राम करना ही करना है. एंड इट सजेस्ट द बेनिफिट्स ऑफ दिस इंटरवेंशन क्लियरली आउटवेज द रिस्क. क्लियरली आउटवेज द रिस्क. यही चीज अगर आप घर पे अनसुपरवाइज्ड करते हैं, उससे अच्छा ही है ना कि नॉलेजेबल डॉक्टर्स के साथ करें, उनके गाइडेंस में करें, तो आप ज्यादा कर पाओगे विदाउट एनी फियर ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट्स. सो व्हाट इज कार्डियक रिहैबिलिटेशन? उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं. तो फेज 1 जो आपका हॉस्पिटल में ही स्टार्ट हो जाता है, उसमें पेशेंट एजुकेशन होता है, अर्ली मोबिलाइजेशन, बेड में से बाहर निकल के लाइट लाइट एक्सरसाइज चालू हो जाते हैं. डॉक्टर आपके साथ, फिजियोथेरेपिस्ट आपको लेके वॉक करवाते हैं. बट एवरीथिंग इज अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग. आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका एक्सर्शन, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, सब कुछ मॉनिटर होता है. आपका ईसीजी भी मॉनिटर होता है. और जहाँ भी कभी कुछ लगता है कि कुछ इशू आता है, तो वो आपको एक्सरसाइज टर्मिनेट करके सीधा लाइन डाउन पोजीशन में ले लेते हैं. सो इट इज़ द सेफेस्ट प्रोग्राम. और इसके बाद आप फेज 2 में आते हैं, जब आप घर जाते हो डिस्चार्ज लेके. उसके बाद आप या तो हॉस्पिटल बेस्ड प्रोग्राम ज्वाइन करो या ओपीडी बेस्ड प्रोग्राम ज्वाइन करो, वहाँ जहाँ पे आपका मॉनिटरिंग के साथ एक्सरसाइज होता हो. इसमें भी ईसीजी मॉनिटरिंग के साथ ट्रेडमिल, साइकिल और धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट होता है. बट
ये स्टार्ट करने के लिए गाइडलाइंस आपकी कंडीशन के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास कुछ भी नहीं किया है, कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो होता है एक्सरसाइज का। पर वही चीज़ अगर आपका एंजियोप्लास्टी बाईपास हुआ है तो थोड़ा फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर बाईपास हुआ है तो वुंड हीलिंग तक रेजिस्टेंस स्टार्ट नहीं करता है, तो 6 to 8 वीक्स के बाद लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। सो इसीलिए आपने ये सब चीज़ें घर पे अनसुपरवाइज्ड नहीं स्टार्ट करनी है, आपने कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ही स्टार्ट करना है। तो एकदम सेफ तरीके से आप प्रोग्रेस भी कर पाओगे और आपका स्टेमिना भी बढ़ा पाओगे। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वापस हार्ट डिसीज आने का रिस्क बहुत हद तक आप कम कर पाओगे। एंड फेज 3 इज लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस, राइट? ये सब चीज़ें करके छोड़ नहीं देना है हमें। अपना ये पॉजिटिव एक्सरसाइज बिहेवियर, पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस हमें बरकरार रखना है, ताकि वापस आप सेम रीजन से हॉस्पिटल में भर्ती ना हो, राइट? सो फेज 2 कार्डियक रिहैब के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से होता है। जब भी हम किसी को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको कैसे गोली देते हैं ना, ये 500 का डोज है, ये आपको सुबह और शाम 2 बार लेना है, 1 महीने तक लेना है। एवरीथिंग हैज दिस फिट प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी। तो दिन में कितनी बार लेना है या हफ्ते में कितनी बार करना है। इंटेंसिटी, जैसे 500 का पावर है या 1000 का पावर है मेडिसिन का, वैसे एक्सरसाइज का पावर होता है। जैसे हमने डिस्कस किया ना, टारगेट हार्ट रेट के हिसाब से या एक्सर्शन के हिसाब से इंटेंसिटी डिसाइड होता है। ड्यूरेशन, जैसे वो दवाई 1 मंथ लेना है या 1 ईयर लेना है, वैसे ये दिन में कितना टाइम करना है और कितना महीने तक करना है। ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो ये एरोबिक एक्सरसाइज का गाइडलाइन है। तो उसके हिसाब से लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हुए हम हाई इंटेंसिटी की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, जिसको हम ट्रेडमिल के द्वारा कर सकते हैं, साइकिल द्वारा कर सकते हैं, एलिप्टिकल है। जिसको ये तीनों मशीन नहीं दे सकते, जैसे नी पेन बहुत है, तो फ्लोर एक्सरसाइज के द्वारा भी कर सकते हैं, साइकिल रोइंग के हिसाब से कर सकते हैं, स्विमिंग के द्वारा कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो आप ऐसा डर के मत रहिएगा कि मुझे इससे डर लगता है या मैं ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। आप आपके डॉक्टर से बात करिए और आपके लिए जो भी बेस्ट प्रोग्राम होगा वो आपके साथ मिलके डिवाइस करेंगे। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए भी फ्रीक्वेंसी होती है 2 to 3 times a week एंड इंटेंसिटी इज 30 to 80% ऑफ 1 repetition max, RM। 1 repetition max मतलब आप एक ही रेपिटेशन में कितना ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकते हैं। सपोज 15 या 20 किलो, वो वजन आप दोबारा नहीं उठा पाओगे, दैट इज 1 RM। तो उसका 30 to 80% वेट कंसिडर करके आपने 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करना होता है। पर अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो ये आप खुद से मत करिएगा, आप अंडर सुपरविजन ही करना है। टारगेटिंग डिफरेंट एंड लार्ज मसल ग्रुप्स, अभी रिस्ट का एक्सरसाइज करके हार्ट को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना शोल्डर, हिप और कोर को एक्टिवेट करके होगा, बिकॉज दीज आर लार्जर मसल ग्रुप्स। तो जितना बड़ा मसल उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पे और उतना ज़्यादा उसका सिस्टमिक इफेक्ट होता है। और मसल्स जितना स्ट्रांग होगा तो जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होंगे तभी भी वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। मतलब आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो जो आप सेडेंटरी बिहेवियर में भी टाइम स्पेंड करते हो ना, उसमें भी आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैलोरीज बर्न करना ज़्यादा ही होगा। सो दैट इज एन एडवांटेज, राइट? और मोड्स आर डिफरेंट डिफरेंट, लाइक डंबल्स यूज कर सकते हो, थेराबैंड्स यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज के स्टेशंस जो होते हैं जिम में वो यूज कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं तो बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। फॉर बेस्ट एग्जाम्पल इज सूर्य नमस्कार। सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव? एनी गेसेस? कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? लेट्स सी क्या क्या है। lower risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, high blood pressure, dementia, Alzheimer, several types of cancers and some complication of pregnancy, ये सब का रिस्क हमारा बहुत कम हो जाता है। These are the side effects। और ये मेन तकलीफों के अलावा भी अदर साइड इफेक्ट्स आर लेस वेट गेन, ओबेसिटी नहीं होगा, और ओबेसिटी के रिलेटेड जो हार्ट कंडीशन, हेल्थ कंडीशन होते हैं वो नहीं होंगे। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका इंसोम्निया जिसमें नींद नहीं आने की बीमारी होती है वो ठीक हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो सेडेंट्री एंड मोटापे की वजह से होता है वो, उसमें राहत हो जाएगी।
बेटर बोन हेल्थ, जैसे बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट होता है, वो भी सेडेंटरी बिहेवियर की वजह से कम हो जाता है, क्योंकि बोन्स पे वजन ही नहीं आ रहा है ना, स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है, तो वो बोन क्यों स्ट्रांग बनाए अगर हमें यूज ही नहीं करना है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बोन हेल्थ भी अच्छा रहता है, बैलेंस अच्छा रहता है, और आपका गिरने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो 60 के एज के बाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जस्ट द फियर ऑफ फॉल इंक्रीजेस बिकॉज बैलेंस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है सीनियर सिटीजन एज ग्रुप में। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेटर कॉग्निशन, जैसे हम देखते हैं ना 60 के एज के बाद कॉग्निशन धीरे धीरे कम हो जाता है, वही चीज़ समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, सुनाई कम देता है। तो ये सब चीज़ें भी, अपनी मेमोरी, अपना अटेंशन स्पैन, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब अच्छे से मेंटेन रहती है। And you are able to have a conversation well, you are able to learn new things better। तो ये सब चीज़ें बरकरार रहती है, आपका ब्रेन स्ट्रांग रहता है। एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, ये जो हमें सबको ही चाहिए होता है, राइट। वी जस्ट डोंट वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ईयर्स, हमें वो ईयर्स को प्रोडक्टिव भी रखना है, और वो एंजॉय भी हम कर पाए वैसा चाहिए, राइट। सो उसके लिए हमारा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होना ज़रूरी है। नहीं तो आप 100 साल भी जियो पर बेड पे ही जीना है तो क्या ही मतलब है। सो हाउ डू यू इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एक्सरसाइजिंग? अभी मुझे नहीं ही पसंद है, मैंने बहुत सब ट्राई कर लिया, पर मुझे एक्सरसाइज करना बहुत आलस आता है, बहुत कंटाला आता है, तो मैं क्या करूँ? सो देर आर अदर एक्टिविटीज दैट यू कैन डू। गाड़ी के यूज़ किए बिना आप चल के जाओ कहीं पे, कुछ काम के लिए जब आप जाते हो, स्टेयर्स यूज़ करो लिफ्ट के बदले। अगर आपको टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, लंच ब्रेक मिल रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा चल लो। प्लेइंग विद किड्स, घर पे किड्स होंगे है ना आपके, ग्रैंड किड्स के साथ, खुद के बच्चों के साथ खेलो। स्टैंड मोर, आपका स्टैंडिंग वर्क स्टेशन में थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, वो भी नहीं तो एक स्टूल रख के उसके ऊपर लैपटॉप रख दो, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है। आई एम स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू यू ऑल। हाउस होल्ड वर्क थोड़ा कर लो, जब ये अभी मेड नहीं आते हैं तो कहीं और ढूंढने के बदले आप खुद ही काम कर लो। फूड प्रिपरेशंस में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मार्केट जाके सामान लेके आना, सब गैदर करना, वॉश करना, ये करना वो करना, उसमें तो आपका एक्सरसाइज थोड़ा हो जाएगा। स्ट्रेचिंग एवरी फॉर 5 मिनट्स एवरी 1 or 2 आवर्स। ओके, स्ट्रेचिंग करने से भी आपका बोन्स एंड मसल्स अच्छा रहेगा, हेल्थ, आपको स्पॉन्डिलाइटिस या शोल्डर पेन, काफ पेन इतना नहीं आएगा, एंड आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका सेडेंटरी बिहेवियर ब्रेक डाउन होगा, और आपका हार्ट के लिए भी आपको फायदा करेगा। एंड टैप द फुट, और कुछ भी नहीं है, मीटिंग है, आप उठ भी नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और मीटिंग बहुत लंबा चल रहा है, तो क्या करोगे? जस्ट पैर का मूवमेंट, एंकल अप एंड डाउन कर लो, नीचे टैप कर लो, पैर सीधा कर लो, नीचे ले लो। सिंपल सिंपल थिंग्स, बेसिकली यूज योर मसल्स, मूव योर जॉइंट्स एज मच एज यू कैन। ओके, सो टेक होम मैसेज फॉर टुडे वुड बी, अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री हो तो थोड़ा कम सेडेंट्री होके लाइट फिजिकल एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी लेस सेडेंट्री हो, मतलब इतना 8-10 घंटा नहीं बैठते हो, 4-6 घंटा बैठ लेते हो, तो थोड़ा और फिजिकल एक्टिविटी भी कर लेते हो, तो थोड़ा हमें मॉडरेट इंटेंसिटी की तरफ जाना पड़ेगा अभी। मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब आप बोल पाते हो बट गाना नहीं गा पाओगे, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है, तो 30 मिनट जितना ब्रिस्क वॉकिंग रोज करना पड़ेगा। और वो ऑलरेडी अगर आप कर रहे हो तो उसको थोड़ा और हम एक स्टेप आगे बढ़ के 150 to 300 मिनट्स अ वीक अक्यूमुलेट करेंगे, और थोड़ा विगरस की तरफ जाएंगे। तो विगरस मतलब थोड़ा फास्ट साइकिलिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्टेयर क्लाइंबिंग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट स्विमिंग कर सकते हैं, ब्रेक्स कम लेना है उसमें, या तो फिर ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर सकते हैं, या पार्क्स में जॉगिंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ता जाएगा, आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज ड्रास्टिकली कम होता जाएगा। Moderate to vigorous physical activity performed even in the bouts of at least 10 minutes has significant positive impact on the health। अगर आपके पास एक साथ 30 to 45 मिनट्स 1 आवर नहीं है, कुछ भी हो जाए नहीं मिलता है, तो मिनिमम 10 मिनट्स अगर आप करते हो एक्टिविटी 3 to 4 टाइम्स इन द डे, उसका भी ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स है। देखो हमारे लिए कितनी सुविधा के लिए करके दी है हमारे शरीर ने, हमारे नेचर ने अपने लिए, तो उसका हमें अभी फायदा उठाना है, और आज से ही, अभी से ही फिजिकल एक्टिविटी चालू कर देनी है। एनी अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज बेटर देन नन। अभी उतना भी मत बताना कि मेरे पास 10 मिनट्स भी नहीं है तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगी। 2 मिनट है तो 2 मिनट करिए, जिस जगह से उठ जाइए वापस बैठिए, उठ जाइए वापस बैठिए।
राइट? कोई बेल बजता है तो बार बार आप ही उठ के खड़ा दरवाजा खोलिए, या पानी पीने के लिए उठते रहिए, ऑर्डर नहीं करिए कि प्लीज मेरे लिए गिलास लेके आना। राइट? जितना भी फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे आपके लिए अच्छा है, और आपका हार्ट डिसीज होने का रिस्क और हार्ट डिसीज की वजह से डेथ होने का रिस्क आप कम कर रहे हो। तो ये जो भी आप कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कर रहे हो। ये सोच के हम करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। Okay, these are the references that you might want to check out. Thank you so much. Thank you very much, Have Dr. any Sejal. questions? Yeah. पार्टिसिपेंट्स आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आप कुछ जानना चाहते हैं और कुछ डिटेल्स में, आप अपना कैमरा ऑन करके पूछ भी सकते हैं, और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। नाउ इट्स ओपन फॉर डिस्कशन। आपने अभी इतना कुछ सुना, आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हो, कितना टाइम करने से, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, आप सब कुछ सुने हो। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज है किसी का, आप ओपनली पूछ Doctor, सकते हैं। वी हैव लॉट myself ऑफ Geeta this side. पार्टिसिपेंट्स। यस मैम। I just have a general question. So I've been diagnosed with congenital heart ASD related. There is a leakage happening. So I just want to know, is it okay to lift a normal weights, and is that exerts any kind of pressure on heart? Is it okay to lift a normal weights like below 1 kg, 1.5 kg and all? No problem, right? In a So day-to-day light exertion activities. में यूजुअली इशू नहीं आता है, बट बिकॉज यू हैव अ कंजेनाइटल इशू, कंजेनाइटल में भी एएसटी है कि वीएसटी है उससे बहुत फर्क पड़ता है। एएसटी में इतना फिर भी इशू नहीं आता है, बट अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो थोड़ा Uh-huh. सीरियसनेस आ सकता है। तो आपके कंडीशन के हिसाब से पहले आप डॉक्टर के पास से क्लियरेंस ले लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। उसका सर्जिकल इंटरवेंशन भी होते हैं, तो आपको एडवाइस किया है नहीं किया है सीवियरिटी के हिसाब से, उसके बाद हम आपको पर्सनलाइज्ड गाइडलाइंस दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ बिट सीरियस कंडीशन। और जब भी आप स्टार्ट करें आप कार्डियक रिहैब से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, रादर देन जस्ट स्टार्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी गाइडेंस। Okay, ma'am. One thing, like after the surgery done, once I'm through the surgery and all, once in the future, if I go through the surgery, hope my all this excessive level of tiredness and all, it will vanish. No, finally, I will डेफिनेटली not, यस, अगर आप because रूट in the कॉज को ही morning time, करते हो yeah, तो डेफिनेटली। morning time I feel so much tired to wake up from the bed also, get out of the bed also. That राइट। much of severe level of tiredness. I'm not in a position to carry laptop to office also. I'm canceling that kind of projects also. In this situation, it's not safe to carry the laptop no to the office and all. Again, I cannot tell you the individualized thing unless I know your situation better. But see, cardiac ailment जो आप बात कर रहे हो ना, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन जिसके वजह से ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, राइट? तो ब्लड Mm-hmm. क्या कैरी करता है? सब इंपॉर्टेंट चीजें कैरी करता है। अपना आरबीसी, Oxygen. रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन हमें Mm-hmm. एनर्जी के लिए चाहिए, Mm-hmm. राइट? फूड कैरी करता है जो हमें एनर्जी के लिए चाहिए। तो अगर Mm-hmm. मुझे लग रहा है जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसके हिसाब से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होना चाहिए। अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जो मेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मेन Mm-hmm. बॉडी में जो ब्लड जाना चाहिए उसके साथ साथ वो थोड़ा ब्लड वापस राइट साइड ऑफ द हार्ट में भेज रहा है, उसके वजह Uh, से आपको बॉडी को प्योर ब्लड कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से yeah, आपको इतना doctor said टायर्डनेस that, और yeah, वीकनेस लग रहा है। yeah, like pure blood and impure blood is getting mixed. करेक्ट करेक्ट। It is सो अनलेस enlarged. यू सॉल्व दैट सेप्टल डिफेक्ट आपका सिम्टम्स नहीं बेटर होगा ना। This is mandatory, no doctor, to undergo surgery. यस, बट आपके डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। Yeah, they told me both to, like in the future, you definitely require Correct, surgery. Yeah. It is correct. better to undergo this. Yeah. The younger, the better. Yeah, yeah, yeah. Okay, doctor. Thank you. Sure. Yes. Welcome. थैंक यू मिस गीता। और किसी का Thank you, sir. कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं? We have a lot of participants today. Questions are welcome. इंडिपेंडेंट डॉक्टर, आप एक बात बता सकते हैं कि डॉक्टर, Yes. यस,
ये जो सीटिंग जॉब है, जो ऑफिस में सीटिंग जॉब कर रहे हैं, एट व्हाट इंटरवल दे शुड टेक ए ब्रेक, की सीट से उठ के कहीं चाय पीने चला जाए, कहीं एक राउंड लगा के आ जाए, ये इंटरवल कितना होना चाहिए? द मोर द बेटर, लाइक इंटरवल कम होना चाहिए, ब्रेक ज्यादा होने चाहिए, बट वो आपके प्रोडक्टिविटी में भी बीच में नहीं आने चाहिए। सो 2020 का रूल हम बताते हैं यूजुअली ergonomic सेशंस में भी। सो बिकॉज आई वाज एन ergonomic फिजियोथेरेपिस्ट विद कोटक महिंद्रा बैंक, सो वी यूज्ड टू फॉलो दिस कि एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स यू शुड टेक अ ब्रेक। और वो टी ब्रेक तो नहीं होना चाहिए बिकॉज टी इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो वी कॉल इट स्ट्रेचिंग ब्रेक या वॉकिंग ब्रेक। तो दैट इज एडवाइजेबल। द मूवमेंट हमें ज़्यादा अक्यूमुलेट करना है, तो अगर आप किसी कलीग से बात करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट कॉल करने के बदले आप वहाँ पे जाके बात कर लो। यू कैन ऑर्गेनाइज वॉकिंग मीटिंग्स, लंच ब्रेक में थोड़ा वॉक कर लीजिए। अगर आपका ऑफिस ऊपर नीचे है तो स्टेयर्स यूज़ कर लीजिए, और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो सिट टू स्टैंड, चेयर पे ही उठक बैठक कर लीजिए, या स्पॉट मार्चिंग जैसे हमने आज किया वैसा कर लीजिए। सो गिव योर बॉडी मोर मूवमेंट एंड योर बॉडी विल थैंक यू लेटर। Okay, thank you. Do you have any other questions? ऑल्सो सी सेडेंट्री बिहेवियर है ना, अभी गाइडलाइंस में दे आर इंक्लूडिंग इन्फेंट्स ऑल्सो। जब वॉकिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है वो एज से दे आर कंसिडरिंग सेडेंट्री बिहेवियर, जस्ट इमेजिन। क्योंकि आजकल बच्चे इतने प्रैम में टाइड अप रहते हैं दैट उनको भी जितना चाहिए उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रहा है। प्लस किड्स को भी हम लैपटॉप या सॉरी टैबलेट्स या आईपैड्स हाथ में चिपका देते हैं या टीवी दिखाते दिखाते खिलाते हैं। प्लस इवन सीनियर सिटीजन, लॉट ऑफ दादा दादी नाना नानीज आर glued to their phone whole day watching Facebook and this thing and that thing. So rather स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है इजीली सबके पास टाइम मिलेगा दूसरे एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए। इवन किड्स 3 to 5 10 years के एज में 1 hour ऑफ विगरस फिजिकल एक्टिविटी वाला प्ले उनको मिलना ही चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। एज पर द स्टेटिस्टिक्स 80% ऑफ द किड्स एंड यंग adults आर नॉट मूविंग इनफ। 80% इज अ ह्यूज नंबर। तो मतलब इतना तो हार्ट डिसीज का लोड बढ़ने ही वाला है इन विद इन फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। और इसीलिए अभी एज ग्रुप भी कम हो गया ना, पहले जो 50-60 के बाद होता था वो चीजें अभी 20-30s में बहुत कॉमन हो चुकी है, सुनने आजकल में भी आ रही 30 में हार्ट का प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। है, आना इवन चालू आप हो गया और बहुत कॉमन हो गया अभी। 42, या और जो 2022। डर भी होता था वो नहीं लग रहा ना अभी। हार्ट डिसीज के आने के पहले आपको वार्निंग मिलता ही है, ऐसे नहीं कि अचानक आ गया। डायबिटीज आता है, ब्लड प्रेशर आता है, वो भी बहुत यंग एज में आना चालू हो गया है। एंड पीपल आर नॉट स्केर्ड ऑफ इट एनी मोर। दे आर लाइक जस्ट मेडिसिन लेते रहो, होते रहेगा काम। मैं आई डोंट वांट अपना टू खुद चेंज का माय लाइफस्टाइल, आई डोंट वांट टू चेंज एक्सपीरियंस माय में बता रहा हूँ। डाइट। या मैं सो अपना ऑल खुद दीस का थिंग्स आर एक्सपीरियंस आपको कंट्रीब्यूटिंग। बताना चाहता हूँ। मेरा 2012 में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। उसके बाद मेडिसिन लेना चालू किया, देन इन बिटवीन आई लेफ्ट, कि ठीक है चलो जो हो रहा है चलो। जब भी टेस्ट करवाते हैं 6 महीना या 1 महीना 1 साल बाद में, जब देखते हैं रिपोर्ट में ज्यादा आया है शुगर, तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन। ये करते करते 2018 में आई हैड अ हार्ट अटैक। मैंने ये सारे बहुत सारे, ये जैसे ट्रेवलिंग में बहुत करता था, ट्रेवलिंग इन द सेंस कि 5-6 घंटे तक आई यूज टू सिट इन द कार। जाके 2 घंटे का काम था, काम करके देन अगेन बैक 5-6 घंटा। वो भी इफेक्ट कर, उस टाइम एक्चुअली पता नहीं चल रहा था कि किस लिए हो रहा है इतना सारा। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, डायबिटीज था, फिर देन हाइपरटेंशन, काम का प्रेशर, तो बहुत सारा कुछ ये था। तो अभी जब ये when I started talking to everybody, सबका अलग अलग ये सेशंस अटेंड जब से करना चालू किए, देन आई केम टू नो कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स है। और डॉक्टर्स भी आप अपना सारे एज बता पाओगे जब भी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और हार्ट अटैक आया? डायबिटीज मेरा आया था 36 में, हार्ट अटैक आया है आपका 42 में। तो एट दैट एज आप बता पाओगे आपका एक्सपीरियंस कि डॉक्टर की साइड से आपको क्या गाइडेंस मिला अदर देन द मेडिसिन? कुछ नहीं, टू बी वेरी एग्जैक्टली। फ्रैंक, डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं वो रिपोर्ट देखते हैं कि आप ये मेडिसिन लो, ये करो, वो करो। और जब भी मेडिसिन लेते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है कि अभी शुगर भरा हुआ है, उस दिन वो ग्लूकोमीटर से चेक कर लेते हैं कि देखा कि थोड़ा कम हो गया, देन वो मेडिसिन हम्म। छूट जाता है। या गैप, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो वो सारे चीजें डॉक्टर्स भी नहीं बताते। आज का डेट में भी डॉक्टर्स नहीं नहीं बताते, बताते। दो टू बी रीजन है, वेरी। एक तो उनको खुद को भी पता नहीं होता है आधी चीजें। अगर आप उनको एक्सरसाइज का बताओगे तो आप वो सेम डायलॉग बोल देंगे, आधा घंटा चल दो।
जैसे हमने डिस्कस किया ना, हाँ। फिट प्रिंसिपल के हिसाब से होना चाहिए, तो उतना डिटेल में उनको पता भी नहीं होता है, एंड दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद द पेशेंट। आइडियली डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, द प्राइमरी प्रिवेंशन पहले आना चाहिए, मेडिसिन आने के पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आना चाहिए। अगर उससे आपका चीजें कंट्रोल में आ जाती है तो मेडिसिन स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। एंड दैट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। वेट लॉस करना है आपको, एक्टिविटी बढ़ाना है, वो पहले आना चाहिए। उससे भी अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तभी जाके मेडिसिन स्टार्ट होनी चाहिए। तो वो सब गाइडेंस आपको डॉक्टर के पास से माय आइडिया वाइफ इज होना बीइंग चाहिए। डिटेक्टेड विथ फैटी लिवर। वाइफ का फैटी लिवर अभी 2 महीना पहले डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर का दो ही एडवाइस है, आप वेट कम करो और डाइट का थोड़ा ये। तो उन्होंने अभी लास्ट 2 महीने से रिगोरसली उनके साथ मैं भी ये करने लगा। तो ऑटोमेटिकली उनका जो डोजेस था मेडिसिन का, आफ्टर 2 मंथ्स डॉक्टर उसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे, मतलब सुबह वॉकिंग वॉकिंग करना अराउंड 1 आवर्स वी यूज टू वॉक एवरी डे फॉर द लास्ट 2 मंथ्स वी हैव स्टार्टेड डेडिकेटली। उससे पहले भी करते थे, लेकिन क्या होता था, वही सप्ताह में 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, बीच में कहीं पे कुछ ये हो गया। अभी कुछ भी करना, सुबह उठ के पहला वो एक्टिविटी रहता है, वो 1 घंटा हम दे देते हैं, उसके बाद बाकी काम होते रहता है। और करेक्ट। नहीं तो क्या होता है, वो 1 घंटा एवरीथिंग घर में इन द बैठ के ग्राउंड या है। तो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या तो बैठ के बातें करते हैं, और कुछ बस वही है। तो अब अगर हम खुद के लिए समझ ले इतना चीज तो बहुत हेल्प होगा खुद के नहीं। लिए। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। Excuse me, can I ask one question? श्योर श्योर श्योर। Yeah, I am 37-year-old and recently went through angioplasty. So can I lift weight around 20 to 25 kg? आप अंडर सुपरविजन स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रेस टेस्ट करा लीजिए। And supervision, by supervision, I'm not telling you under gym instructor's supervision, under a cardiac physiotherapist supervision. मैम इको स्ट्रेस मैंने 1 मंथ पैक कराया था, दैट केम्स टू बी नॉर्मल। हाँ, तो ये जब आप वेट लिफ्ट भी कर रहे हो ना, तो तभी भी आप ईसीजी मॉनिटरिंग के साथ कर सकते हैं। तो 1 or 2 months आप कार्डियक रिहैब करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो सेफ्टी रेंज में आपके लिए है कि नहीं। देन यू कैन डू अनसुपरवाइज्ड। One more thing, for the home course, like can I pick up the water bucket or Yeah, something that can do? that much you can do. Okay, thank you. Hello. Ma'am, I have a general question. Excessive sweating जो है, is it kind of a symptom or sign? सिर्फ Like, स्वेटिंग नहीं, कोई किसी का टेंडेंसी ज्यादा होता है स्वेट करने का, किसी का कम होता है, बट एक्सरसाइज की वजह से अंदर हीट जनरेट होता ही है। और स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन जो हीट डिसिपेट करने में हमें हेल्प करता है। जैसे स्वेटिंग होता है तो पानी के साथ हीट निकलता है, सो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर उससे मेंटेन होता है। तो उससे दूर नहीं भागना है, होने देना है स्वेटिंग। बट अगर अनयूजुअल होता है, उसके साथ आपको चेस्ट पेन या अनईजीनेस लगता है, तो वो कंसर्न की बात है, अदरवाइज इट्स ओके। बट जितना फ्लूइड आप लूज करते हो एक्सरसाइज में, वो उसके पहले, दौरान और बाद में रिप्लेनिश भी करना है। तो okay, 2 to 3 लीटर्स आपने पानी भी पीना है, अनलेस आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको नहीं चाहिए उतना पानी। okay, जैसे हार्ट फेलियर है या किडनी इशू है, तो उसमें वाटर रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ऐसा कुछ और नहीं है कंडीशन, तो आप बिंदास 2 to 3 लीटर्स ले सकते हो। okay. So while eating and something like sitting around without exercising or without moving any doing any activity, so sweating is normal or kind of हाँ, sign? इट्स ओके, आई मीन इट्स द टेंडेंसी। द हेवियर यू आर द मोर यू स्वेट यूजुअली, बिकॉज आपको सभी चीजों में एफर्ट भी ज्यादा लगता है। Okay. Thank you so much. एनी अदर क्वेश्चंस? ओके सर, यू आर म्यूट। वी हैव वी आर लेफ्ट विद 3-4 मिनट्स। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। I don't think there is any question.
सो अभी डॉक्टर कल पे नहीं डालना है, आज से ही हमें मूवमेंट स्टार्ट करना है, और ऑलरेडी हो Absolutely. रहा है तो उसको थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते जाना है. ओके, एब्सोल्युटली आपने जस्ट इजी टेक से होम इजी मैसेज वे आई में वुड बता दिया स्ट्रांगली है। एडवाइज. एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। आपने इजी से इजी वे, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अपना पैर हिलाते रहो, कुछ भी करो जो आपने बोला है, अगर जो उसको मन फॉलो में आए करेंगे करो. ये सेशन हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइटफुल ये, और जो भी आपने बोला है कि कैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग को अफेक्ट करता है, हाउ इट अफेक्ट्स हार्ट हेल्थ, और उससे कैसे बचना है अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम भी है, हाउ टू कीप द हार्ट एक्टिव, ये सारे चीजें हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।